Hello student, today we are going to learn History chapter 3, the Delhi Sultan. In this chapter we are going to learn that which are the rulers those who are ruled in Delhi. Delhi में किन किन rulers ने rule किया, and that period, in that period, from where they had come and how many time they had spent there, and why this Delhi is important in that period, we are going to learn. This is about the 13th century description. Okay, so let's move to the south to north. आपने इसे चैप्टर 2 में, इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा, जैसे जो भी किंगडम सेटअप हो रही थी, न्यू किंगडम्स हो रही थी, वो सारे जो भी हो रही थी वो साउथ से बनती जा रही थी. ओके, मैक्सिमम जो इंडियन रूलर्स थे वो साउथ में अपना एम्पायर सेटअप किए. अब हम इन साउथ से नॉर्दर्न साइड में हम थोड़ा जाते हैं, तो ठीक है. तो इस नॉर्दर्न साइड में जब हम मूव करते हैं तो जनरली जो आउटसाइडर्स थे, जो आउटसाइडर रूलर्स थे, उस समय ऐसा हो रहा था कि जो भी रूलर्स थे सबका मेन इंटेंशन ये था कि एक दूसरे को हरा के उनके एम्पायर को अपने अंडर में ले आना और अपना एम्पायर सेटअप करना. तो हमारे इंडिया में भी जो बाहर से रूलर्स आए थे, कुछ जो टर्क से आए थे, कुछ अफगान से आए थे. So like that, when those who are came in India, they first of all they captured the Delhi first, okay, and then they established their empire over here and make their empire here and make the sultanate in this northern part. So now we are going to talk about all this northern area, how what happened in this part and how this Delhi has become so important. Okay, how this kingdom of Delhi is set up. Next, in your book, in this page, maybe you all are having in your book, just see in this page, you will see here those which are the rulers. You will get the knowledge that which are the rulers are ruled in Delhi. First, the empire, those who are ruled in Delhi are the Tomars. Okay, they are the Tomar Rajput. पहले जो इंडियन रूलर होते थे, जो राजपूत होते थे, वो भी उनके भी दो अलग अलग पार्ट होते थे. तो भी अलग अलग तरह के राजपूत होते थे. तो पहला राजपूत जो रूल किया था हमारी इंडिया में या दिल्ली में, तो वो है तोमर राजपूत. तोमर राजपूत का सबसे पहला रूलर था अंगापाला. Okay, then in Angapala was defeated by the Chauhans, then the Prithviraj Chauhan. Like that, you see this table here, it make it more clear that which are the rulers ruled and how, which are the period they had established their empire. Okay, after the Rajput, then the early Turkish ruler has established their power. Then the Khalji dynasty come, then the Tughlaq dynasty come, then the Sayyid dynasty, and the last is the Lodi dynasty. After the Lodi dynasty, then the Mughal empire has established their power. So these are the period when various type of dynasties are set up in Delhi. So like this way, the Delhi is important in this period. इस पीरियड में दिल्ली इसलिए इम्पोर्टेंट हुआ क्योंकि इन सब ये भी जितने भी डायनेस्टीज हुई, इन सब का मेन एम यही होता था कि दिल्ली पे अपना राज करे, उसके बाद फिर अपना एम्पायर जो है वो स्प्रेड करे एक जगह से दूसरी जगह. तो हम इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आती है कि हमको इन सारी चीज़ों की बातों का पता कैसे चला है. दिल्ली में दिल्ली सल्तनत बनने में इतने सारे ये जो रूलर्स आए, ये कैसे आए, कहाँ से आए, इन सब की नॉलेज हमको कहाँ से पता चली. So for that we need a various sources, how we get all this type of information in our history. So you have already learned in your last chapters that the various sources of information which we are getting in our history, that all are inscription, coins and architectures. ओके, हमको यही है वेरियस सोर्सेज जिससे हमको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि हमारे हिस्ट्री में, हमारे बैक में, उस पीरियड में कहाँ पे क्या हुआ. इंस्क्रिप्शन से, कॉइन से, आर्किटेक्चर से. तो यहाँ पे एक और बात भी, और भी इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है इन दिल्ली सल्तनत में. एक और इम्पोर्टेंट सोर्स है जिससे हमको दिल्ली सल्तनत के बारे में पता चलता है, वो है तारीख और तवारीख. तारीख और तवारीख. नाउ द स्टूडेंट्स मे बी द क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड कि अब ये तारीख तवारीख क्या चीज़ है. ओके,
So Tariq is a singular word, and the plural of Tariq is the Tawarik. What is this? Okay, Tawarik are the Tawarik are the histography containing the history by the learned man. Okay, Tawarik एक हिस्टोग्राफी है जिसे एक हिस्टोग्राफी है जिसे लर्न मैन, उस समय जो पढ़े लिखे लोग होते थे वो अपने रूलर्स के बारे में लिखा करते थे, या उस समय जो लर्न पर्सन, जो जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज होती थी, जो थोड़े से पढ़े लिखे होते थे, वो रूलर्स के बारे में, रूलर या उनके और भी वेरियस टाइप ऑफ रूलर्स के बारे में लिखा करते थे। तो एक रूलर के बारे में अगर कुछ लिखे तो उसको तारीख कहा जाता था, और बहुत सारे रूलर के बारे में अगर कुछ लिखे तो उसको तवारीख कहा जाता था। ओके, हु आर दिस ऑथर्स? ये ऑथर कौन थे और ये कौन इम्पोर्टेंट लर्न मैन थे जो ये तारीख या तवारीख लिखा करते थे? ये वो है जो किंग के दरबार में, मतलब जो रूलर्स होते थे, जो राजा होते थे, उनके दरबार में जो सेक्रेटरी होते थे राजा के, एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, पोएट होते थे, या कोई कॉर्टियर्स होता था, ये दरबार का जो लोग होते थे वही राजा के या राजघरानों के बारे में लिखा करते थे। ठीक है, तो जो लिखा करते थे वो अगर एक रूलर के बारे में लिखे तो उसको तारीख, और जो बहुत सारे रूलर के बारे में लिखा करेंगे तो उसको तवारीख। तो जनरली एक तवारीख जो है वो एक मैन्युस्क्रिप्ट जैसा है। ठीक है, अब इसको लिखने के भी 4 स्टेज, देयर आर द 4 स्टेजेस ऑफ मेकिंग दिस तवारीख। क्या है ये 4 स्टेजेस? दिस 4 स्टेजेस आर प्रिपेयरिंग द पेपर। उस समय जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि पेपर का इन्वेंशन बहुत देरी से हुआ था। जैसे पहले वीडियो में फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने आपको बताया कि पेपर का इन्वेंशन बहुत लेट से हुआ, वैसे ही यहाँ भी पेपर इतना पॉपुलर उस समय तक नहीं हुआ था। तो पहले ये लोग पेपर का अरेंजमेंट किया करते थे, फिर राइटिंग द टेक्स्ट, उस पर लिखा करते थे, हाथों से लिखा करते, क्योंकि उस समय कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी। तो राजा के बारे में या उनके बारे में जो भी कुछ लिखना होता था वो सब हाथ से ही हैंड रिटन हुआ करता था। मेल्टिंग ऑफ गोल्ड टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेजेस। मेल्टिंग ऑफ गोल्ड, अब ये हियर दिस मीन्स दैट, जैसे कि आप देखो यहाँ पे मैंने रेड कलर यूज़ किया है, कहीं कहीं पे रेड कलर से लिखा हुआ है, तो हाईलाइट करने के लिए मैं लिखी हूँ। आज के डेट में हाईलाइट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थे, कहीं हाईलाइटर होता है तो मार्कर, कहीं हम वेरियस टाइप ऑफ कलर पेन यूज़ करते हैं, तो उस समय ऐसा नहीं होता था। तब वो लोग किसी चीज़ के, किसी बात को इम्पोर्टेंट, जो वर्ड कोई इम्पोर्टेंट है या किंग उसको हाईलाइट करना होता था, तो वो गोल्ड को मेल्ट किया करते थे और उसकी इंक जैसी एक लिक्विड फॉर्म में बना के उससे लिखा करते थे, जिससे वो हाईलाइट कर सके। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट आर द थिंग्स रिटन इन अ तवारीख? तवारीख में लिखा क्या होता था और किन किन बातों को तवारीख में मेंशन किया जाता था? जनरली उस समय जो ऑथर होते थे वो तो मैंने पहले भी आपको बताया कि तवारीख में राजा के बारे में या उनके राजघराने के बारे में लिखा होता था। तो जो ऑथर होते थे वो भी कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में हमेशा रखा करते थे तवारीख लिखने से पहले। That are the following details should be kept in mind with the record of the tawarikh and their authors. कुछ ऐसी बातें जो ऑथर्स अपने दिमाग में रख के इन तवारीख को लिखा करते थे। The authors of the tawarikh lived in the cities, mainly Delhi, and hardly ever in village. जो तवारीख लिखने वाले जो ऑथर होते थे वो जनरली शहरों के ही होते थे, किसी गांव में ज़्यादातर आना जाना नहीं करते। तो जनरली वो जो भी लिखा करते थे राजा राजघराने के बारे में और उस शहरों के बारे में ही ज़्यादा लिखा करते थे, गाँवों के बारे में, क्योंकि वो कभी गाँव का एरिया देखे ही नहीं थे, तो उससे ज़्यादा और कुछ वो लिखते नहीं थे। ओके, द often wrote their histories for the sultan in the hope of the rich reward. इनका एक और एम भी होता था जनरली इन ऑथर्स का, जो ये लिखा करते थे राजा के बारे में अगर कुछ पॉजिटिव, ये तो बट ऑब्वियस है, जैसे कोई हम किसी की तारीफ हम करते हैं तो किसी उम्मीद में करते हैं कि वो बंदा खुश होगा, तो वैसे ही उस समय जो ऑथर होते थे जो इनके बारे में, राजाओं के बारे में लिख रहे हैं, ये भी अपने दिमाग में हमेशा ये रखते थे कि कुछ ऐसा अच्छा लिखेंगे जिससे इनको कुछ अच्छा सा रिवॉर्ड मिले या कुछ अच्छा सा गिफ्ट मिला, राजा से अच्छे से गिफ्ट मिले।
Okay. These authors advise the ruler on the need to preserve an ideal social order based on the birthright and the gender distinction. अब ये ऑथर जो है वो राजा को एडवाइस भी दिया करते थे, कुछ अच्छे एडवाइस दिया करते थे जिससे राजा को अपने डिसीजंस लेने में है इजी हो और ये अपने डिसीजंस ले सके। तो ये जनरली राजा को ये बताया करते थे कि राजा ऐसा होना चाहिए जिनके आइडियल सोशल ऑर्डर हो, जो अपनी आइडिया जो अपने ऑर्डर्स जो है वो बहुत ही आइडियल होने चाहिए, अलग होने चाहिए आइडियल, और जिससे वो अपना राजकाज अच्छे से संभाल सके। ओके। और बर्थ राइट मतलब उनके बर्थ राइट पे ही डिपेंड होना चाहिए, जैसे राजा का बेटा जो है वो नेक्स्ट रूलर हो, ये इस टाइप की बातें ये ऑथर उनको एडवाइस दिया करते थे। जेंडर डिस्ट्रिक्शन भी होता था तब थोड़ा सा कि किन को होना चाहिए, किन को मिलना चाहिए राजकाज, किन को नहीं मिलना चाहिए, लाइक दिस। ओके, तो ये वाला पॉइंट थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पॉइंट को आप आगे और अच्छे से समझ पाएंगे जब इन ऑथर्स की बातें आप और अच्छे से इनके कुछ और पॉइंट्स आप जब आप देखेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द सर्कल ऑफ जस्टिस। ओके, सर्कल ऑफ जस्टिस मतलब जो जस्टिस या लॉ बनाने का जो सर्कल है वो एक एरिया है जहाँ पे किंग जो है अपने जस्टिस, अपने जजमेंट जो है, अपना राजकाज जो है वो कैसे सेटअप करे। तो इस समय जो ऑथर होते थे वो भी, मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया कि ऑथर्स जो होते थे वो राजा को एडवाइस क्या करते थे कि उनका एक आइडल सोशल ऑर्डर होना चाहिए, आइडल ऑर्डर या आइडल सब्सक्रिप्शन होना चाहिए जिससे उसका राजकाज अच्छे से सेटअप हो सके, अच्छे से वो अपना राज चला सके। ठीक है, हमारे अपना एम्पायर सेटअप कर सके। उस समय एक बहुत ही फेमस ऑथर हुआ करते थे जिसका नाम है फ़ख्रे मुदब्बिर। रोट इन द 13th सेंचुरी। इन्होंने कुछ 13th सेंचुरी उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे जो इनके एडवाइस से रिलेटेड है। ठीक है, ही had written that a king cannot survive without the soldier। इनका फर्स्ट ये कहते थे कि किंग जो है वो बिना सोल्जर्स के सरवाइव नहीं कर सकता। सही भी है कि किंग बिना सोल्जर्स के, अकेला किंग बिना सोल्जर्स के सरवाइव नहीं कर सकता। ठीक है, तो एंड द सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट द सैलरी। नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि सोल्जर्स जो है वो बिना सैलरी के सरवाइव नहीं कर सकता। मतलब अगर कोई किसी के लिए काम कर रहा है तो वो कोई फ्री में नहीं करता, तो उसके लिए भी कुछ इसको सैलरी एक्सपेक्ट करता है। नेक्स्ट इज द सैलरी कम्स फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द पीजेंट्स। ओके, सैलरी कहाँ से आएगी? सैलरी जो पीजेंट्स जो साहूकार जो होते थे वो जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं वही, उसी से ही उनकी सैलरी बना करती थी। ठीक है, अब ये सैलरी जो, बट द पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्परस एंड हैप्पी। अब ये जो पीजेंट्स हैं ये तभी अपने रेवेन्यू कलेक्ट करके अपने राजा को तभी वो देंगे जब वो खुद प्रॉस्परस हो या धनवान हो या हैप्पी हो। ठीक है, नेक्स्ट दिस हैपन विथ व्हेन द किंग प्रमोट्स द जस्टिस एंड द ऑनेस्ट गवर्नमेंट। ये भी तभी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट जो किंग है वो एक फेयर जस्टिस करें और एक ऑनेस्ट गवर्नमेंट सेटअप करें। दैट मीन्स ऑल दिस पॉइंट्स आर इंटरलिंक्ड। अगर ये राजा है तो सोल्जर होना है, सोल्जर है तो उसकी सैलरी होनी चाहिए। सैलरी कहाँ से आएगी? तो रेवेन्यू से आएगी। रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा? पीजेंट्स। पीजेंट्स कैसे खुश रहेंगे? अगर उनके पास वो प्रॉस्परस हैं, वेल्दी हैं, तभी उनको सारी। तो ऐसे यही एक सर्कल है, ये एक जस्टिस बना हुआ। ये सारा चीज़ तभी फॉलो होगा जब किंग अपने लॉज एंड ऑर्डर्स फेयर और अच्छे तरीके से रखें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज मिनाजे सिराज थॉट अबाउट द रजिया। व्हाट मिनाजे सिराज, अब ये मिनाजे सिराज कौन है जो बीच में आ गया? मिनाजे सिराज थॉट अबाउट रजिया। मिनाजे सिराज, हु इज दिस? मिनाजे सिराज Minaje Siraj is the principal historian of the Mamluk Dynasty Chronicles. Mamluk Dynasty Chronicles. Okay, मिनाजे सिराज एक हिस्टोरियन है, प्रिंसिपल जिसके जो मामलुक डायनेस्टी के बारे में, मामलुक डायनेस्टी का ही से बिलोंग करता है और वो
फेयर पॉइंट्स ही जो राजा से अच्छी एडवाइस एक्सपेक्ट है वही उन्हीं बातों को वो लिखा करते थे। तो इस डायनेस्टी में ममलुक डायनेस्टी जो थी उस समय जो है रज़िया सुल्तान जो है वो सल्तनत मतलब वो सल्तनत संभाल रही थी। अब नाउ हु इज़ रज़िया सुल्तान? रज़िया सुल्तान was a daughter of Sultan Iltutmish. In the 13th century, Sultan Iltutmish was a ruler. अब उनके जाने के बाद उनका राजकाज संभालने के लिए उन्होंने अपना राजकाज अपनी बेटी को संभालने दिया। बीइंग एज अ फर्स्ट गर्ल उस समय, जस्ट थिंक अबाउट इट, उस समय फीमेल रूलर जो है वो उन्होंने राज अपना संभालना शुरू किया। ठीक है, she has started his ruling period from 1236. Okay, but what happened? The Minaj Siraj recognized that. अब यहाँ पे इन पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। Minaj Siraj recognized that she was more able and qualified than all her brother. Minaj Siraj मतलब ये जो ऑथर हैं ये एक्सेप्ट करते थे कि रज़िया जो है वो अपने बाकी भाइयों, इल्तुतमिश के और भी बेटे थे, इन सब बेटों से भी उनके काबिल बेस्ट जो थी वो रज़िया थी। इसीलिए इल्तुतमिश ने रज़िया को अपना नेक्स्ट राजकाज संभालने की जिम्मेदारी दी थी। ठीक है, तो मिनाजी सिराज भी मानते थे कि रज़िया जो है वो ज़्यादा केपेबल है और ज़्यादा क्वालिफाइड है राजकाज संभालने के लिए। बट अगेन दिस स्टिल बट इज़ कम। He was not comfortable at having a queen as a ruler. ये सारी पॉइंट होने के बावजूद भी ये मानते थे कि वो किसी लेडी या किसी क्वीन के अंडर में काम नहीं कर सकते हैं, ये क्वीन एज ए रूलर नहीं हो सकती। ठीक है, वो अनकंफर्टेबल फील किया करते थे। He says that Minaji Siraj thought that queen ruler went against the ideal social order created by the god. अब उनके अनुसार ऐसा था कि क्वीन जो है वो आइडल सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट है, जो आइडल सोशल ऑर्डर जो गॉड का बनाया हुआ है। अब इसमें इन्होंने गॉड को भी बीच में ले आया। ये कह रहे हैं कि जो आइडल सोशल ऑर्डर है जहाँ पे जो मेल है उन्हीं को ये रूल दिया गया है, उन्हीं को सिर्फ ये माना जाता है कि सिर्फ वही रूल कर सकते हैं, और जो फीमेल है वो कभी रूल नहीं कर सकती। तो बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटर वाले थे ये भी उनके फेवर में होते थे कि कोई क्वीन जो है वो वहाँ की रूलर नहीं बन सकती। That time that was a male dominated society. You can also say that time the male want to rule. They cannot allow any female to rule on any country, any of the empire. Then the result was that she was removed from the throne from 1240. So 1214 तो उनको रज़िया सुल्तान को 1240 मतलब 1240 में इनको उनकी सल्तनत से हटा दिया गया, और यू कैन से इट शी वाज किल्ड। ओके, so next, like this way, the male dominated society has removed her and established their own empire. Okay, the next topic, let's move to the next topic, that is from garrison town to the empire. अब ये एक नया टॉपिक आ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फिर से एक नया वर्ड आ गया, एम्पायर सेटअप हो रहा है, एक एम्पायर दूसरा एम्पायर कैसे कर रहा है। अब एक और नया वर्ड आ गया, गैरिसन टाउन। अब ये गैरिसन टाउन क्या है? सो नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट लाइन, द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सुल्तान। अब ये दिल्ली सुल्तान का एक्सपेंशन समझ में तो आता है कि दिल्ली सुल्तान अपना एक्सपेंशन मतलब अपना एम्पायर कैसे एक्सपेंड करना, कैसे स्प्रेड किए। इसके बीच में इनका स्प्रेड करना जो है वो यू कैन गेट द आइडिया, इट्स अ टाउन टू एम्पायर। मतलब जो रूलर होते थे दिल्ली सुल्तान वो एक छोटे छोटे एरिया में अपना एम्पायर बनाए थे, मतलब छोटा छोटा एरिया उन्होंने कवर किया हुआ था। उस एम्पायर को बड़ा एक्सपेंड करना है, तो वो जो छोटा टाउन जो है उसको बड़ा करके एक एम्पायर बनाना है। तो द टॉपिक इज रिलेटेड टू दिस। ओके, so next is what is garrison town? An area which was highly fortified, soldiers used to live there. Okay, मतलब ये garrison town मतलब वो एरिया जहाँ उन्होंने
बड़े बड़े फोर्ट्स बना लिए थे, मतलब अपने टाउन का एक बाउंड्री में उन्होंने बड़े बड़े फोर्ट्स बना लिए और चारों तरफ से मतलब फोर्ट से कवर्ड है, जहाँ पे सारे सोल्जर्स और रूलर्स सारे एक ही जगह में रहते हैं। तो वो टाउन, तो जनरली दिल्ली सुल्तान, जो भी सुल्तान होते थे, वो अपने एरिया को फोर्टिफाइड मतलब अच्छे फोर्ट से कवर कर दिया करते थे, तो उनका एक एरिया जो है वो लिमिटेड हो जाता था। Initially, the control of Delhi Sultan was mainly restricted to the garrison town. No major control the hinterland. Again, the one another word hinterland. तो जनरली जो दिल्ली सुल्तान जो है उनका कंट्रोल सिर्फ garrison टाउन तक होता था, उससे बाहर तक उनको एक्सपेंड होने में थोड़ी दिक्कत जाती थी. नो मेजर कंट्रोल ऑन हिंटरलैंड. अभी हिंटरलैंड क्या है? द लैंड एडजस्टिंग टू द सिटीज और अ पार्ट that supply it with the goods and service. इन fortified area से बाहर जो छोटे मोटे ट्राइबल एरिया होते थे, जहाँ से इनको गुड्स और सर्विस प्रोवाइड होते थे, उन एरिया को हिंटरलैंड कहते हैं. ओके, got it? So Delhi Sultan was dependent upon the trade, tributes and the plunder for supply. दिल्ली सुल्तान जो है वो ट्रेड, ट्रिब्यूट्स और द प्लंडर और सप्लाई पे डिपेंड हुआ करती थी. नेक्स्ट, द कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन द डिस्टिंक्ट एरिया. अब ये जो गैरिसन टाउन डिस्टिंक्ट एरिया लाइक द बंगाल एंड द सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. ये जो गैरिसन टाउन, मतलब अगर ये दिल्ली सुल्तान, जो सुल्तान होते थे वो दिल्ली पे रूल कर रहे हैं, अब इनका अलग एक और जगह इन्होंने अपना सेटअप किया. मान लो बंगाल में इन्होंने अपना एरिया, अपना फोर्टिफाइड एरिया बना लिया, तो इनको दिल्ली से बंगाल तक का एरिया कवर करने में, यहाँ से दिल्ली में बैठे बैठे बंगाल तक के एरिया को कंट्रोल करना थोड़ा प्रॉब्लम होता था. तो देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स अराइज टू लुक आफ्टर द डिस्टिंक्ट एरिया एम्पायर. तो उनके जो बीच, मतलब नॉर्दर्न एरिया में अगर हम देखेंगे तो उनका दिल्ली से बंगाल तक का, बंगाल मतलब अगर इफ़ यू मूव टू द ईस्टर्न साइड, नॉट एबल, इनका मेन एम था कि अपना एम्पायर एक्सपेंड करना. तो इसके बीच में, मतलब नॉर्दर्न से लेकर ईस्टर्न के बीच में जो एम्पायर हुआ करते थे, उनके साथ अपना जोड़, कैसे उन लोग उनके साथ जुड़े और वहाँ तक अपना कंट्रोल करें. तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी इन गैरिसन टाउन से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के बीच में और अपना सेटअप करने में. सो फर्स्ट पॉइंट इज द रेबिलियन बाय द लोकल गवर्नर. मतलब दिल्ली से लेकर बंगाल के बीच में जो भी लोकल एम्पायर्स होते थे, लोकल गवर्नर, उनसे रिबल, उनसे मुठभेड़ होना, उनके वो अगेंस्ट हो जाते थे कभी कभी. तो उनको, उनमें बहुत सारी चीज़ें रोका करते थे, उनको चीज़ें तो डिस्टर्ब होता था. वॉर क्रिएट होना, लड़ाइयाँ होती थी बहुत. देन बैड वेदर कंडीशंस कैन डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन. ख़राब वेदर के कारण भी मिसकम्युनिकेशन होता था, जैसे कि बाढ़ आ गया या इस टाइप की चीज़ें कुछ हुई, तो इससे भी इनको बहुत प्रॉब्लम होती थी. मंगोल्स इन्वेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. ये पॉइंट एक पूरा चैप्टर है, वी विल सी इन द नेक्स्ट. ओके, so then for this they had taken out another remedy, that is the consolidation of the sultanate was very essential. उस समय कंसोलिडेशन करना सल्तनत के साथ वो बहुत ही ज़रूरी हो गया. तो कंसोलिडेट करने के लिए, कंसोलिडेशन अकर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड द मोहम्मद तुगलक. ओके, तो इन्होंने ये तीनों ने कुछ कंसोलिडेशन रूल्स निकाला सो दैट दे कैन एस्टेब्लिश देयर एम्पायर. ओके, तो इसके बारे में और हम थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.